باغبانپورہ بھینی روڈ کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ چند روز سے علاقے میں وولٹیج کی کمی کا سنگین مسئلہ ہے، علاقہ مکینوں کی جانب سے بتایا گیا۔ مزید کہتے ہیں کہ متعدد شکایات کے باوجود لیسکو نے مسئلہ حل نہیں کیا ہے۔ عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ کریں گے۔ عابد چودھری بتائے گا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل کتنا مکمل ہو گیا ہے؟ بالکل، یہ مناوا کا علاقہ بھینی روڈ ہے جہاں پر ربڑ فیکٹری میں لگنے والی آگ پر تقریباً 2 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو کی جانب سے 15 سے زائد جو فائر ٹینڈر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 25 سے زائد افسران و اہلکار ہیں جن کی جانب سے اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا گیا۔ آتش زدگی کے باعث کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ کروڑوں مالیت کا مالی نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری جانب جو فیکٹری مالکان ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں عرصہ دراز سے وولٹیج کی کمی بیشی کا سلسلہ جاری تھا، جس کی متعدد بار شکایات بھی کروائی گئی، لیکن تاحال اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا اور آج بھی وولٹیج کی کمی بیشی کے باعث جو شارٹ سرکٹ ہوا اور شارٹ سرکٹ کے باعث فیکٹری جو ہے وہ مکمل طور پر جھلس گئی ہے۔ اس وقت جو علاقہ مکین ہے فیکٹری مالکان وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بتائیے گا کیسے آگ لگی، اور دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں کہ لیسکو کو آپ نے متعدد شکایت کی تھی، اس کے باوجود مسئلہ آپ کا حل نہیں کیا گیا۔ جی دیکھیں کہ یہ لیسکو کو ہم نے 27 جنوری کو باقاعدہ 10-15 فیکٹری اونرز نے جا کے ریکویسٹ کی کہ ہمارے یہاں وولٹیج بہت ڈراپ ہو رہے ہیں، ہائی ہو رہے ہیں، ہماری چیزیں جل رہی ہیں، موٹریں جل رہی ہیں، آپ اس پہ کوئی عمل کریں، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنی گی۔ اور آج صبح جب 9:15 بجے لائٹ گئی ہے اور 10:15 بجے جب لائٹ آئی ہے، بند فیکٹری میں الیکٹریسٹی شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ شارٹ سرکٹ سے یہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ ہمیں آدھے گھنٹے میں کنٹرول کرنا مشکل ہوگی۔ ہمارے پاس جو 20-25 سلنڈر سے ہم نے وہ یوز کیے، ہماری لیبر زخمی ہوگی کہ اس کو آگ کو کس طرح بجھایا جائے، لیکن اس کے بعد پھر 1122 آگے اور 1122 والوں نے آگے اس پہ قابو کیا، 2 گھنٹے کے بعد قابو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن کروڑوں مالیت کا سامان شکر الحمدللہ کہ جی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، لیکن جو مالی نقصان ہے وہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ ساری لیسکو کی نیگلیجنسی ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری لگ چکی ہے، 25-30 فیکٹریاں لگ چکی ہیں۔ یہ میرے ساتھ تمام فیکٹریوں کے آنرز موجود ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہم بھی اس فیکٹری کے ہمسایہ فیکٹری مالکان ہیں۔ تو یہ مسئلہ لیسکو کا تھا، اور جب اس کی ٹرپنگ اور لوڈ شیڈنگ انکنڈیشنل ہو رہی تھی یا بغیر بتائے ہو رہی تھی، اور جب وہ لائٹ آتی تھی اتنے ہائی وولٹیج ہو جاتے تھے کہ ہماری اکوپمنٹس، ہماری موٹریں، ہمارے انورٹرز جل جاتے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی وجہ سے ہوا۔ تو ابھی آپ لوگوں کی فیکٹریاں کھلی ہیں یا آپ لوگوں نے بند کر دیں؟ ہم پچھلے 7 دنوں سے اپنی فیکٹریاں بند کر کے بیٹھے ہوئے، ہم ایکسچینج صاحب کے پاس گئے تھے 27 جنوری کو، اس دن سے آج تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ایس ڈی او صاحب کو انہوں نے کہا ملنا ہے، ایس ڈی او صاحب وہاں نعمان صاحب ہیں وہ ہمیں ملے نہیں ہیں، ہم نے ان کو ریٹرن ریکویسٹ دے دی 27 جنوری کو، آج 1 فروری آ گئی ہے، لیکن آج تک ہماری کسی نے کوئی بات نہیں سنی اور اس مسئلے کو حل بھی نہیں کیا، اور آج دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ بتا رہے 3 ماہ سے جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، نیکسین آپ کی بات سن رہا ہے، نیسٹیو بات سن رہا ہے، تو کس سے مطالبہ کرتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا جائے؟ دیکھیں ہماری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، اور جہاں پہ اتنی بڑی انڈسٹریز ہیں اور جو لوگ اپنے بل دے رہے ہیں، وہ اینٹین ہولڈرز ہیں، وہ اپنی کمپنیوں کے بزنس کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کا یہاں روزگار لگا ہوا ہے، تو اس چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو وقتلی دیکھ لیا جائے، اگر ٹائم سے یہ کام کر لیا جائے تو اتنے بڑے حادثوں سے ہم بچ جاتے۔ بالکل ٹھیک، یہ فیکٹری مالکان تھے جن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 ماہ سے وہ ایکسین لیسکو، ایس ٹی او لیسکو جو ہے ان کو متعدد بار شکایت جو ہے بھجوا چکے ہیں، لیکن تمام شکایت کے باوجود علاقے کا جو وولٹیج کا مسئلہ ہے وہ اس کو حل نہیں کیا گیا، اور آج بھی شارٹ سرکٹ کے باعث یہ فیکٹری میں آگ لگی، جس کے باعث ہے کہ شیڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ہی زمین بوس ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں مالیت کا جو نقصان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ البتہ اے سی واگا جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے، جن کی جانب سے معائنہ کرنے کے بعد موقع سے چلتے بنے، لیکن جو فیکٹری مالکان ہیں انہیں کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی گی کہ ان کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کر دیا جائے گا۔ جی، فیکٹری مالکان کو کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی ہے۔ عابد چودھری اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ادھر بھاٹی چوک حادثے میں پارکنگ سٹینڈ سے متعلق نئے حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ داتا دربار کے سامنے لی پارک کی پارکنگ سائٹ تعمیراتی کام کے باعث 16 جنوری سے بند تھی۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، بھاٹی گیٹ کے مقام پر ہونے والے افسوسناک واقعے میں جس میں کہ ماں بیٹی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اس حوالے سے جو پارکنگ سٹینڈ وہاں پہ تھا جس کو ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے اس حادثے کی بھی، اس کے بارے میں ایک نئے حقائق سامنے آئے، اور وہ یہ کہ وہ پارکنگ سٹینڈ غیر قانونی تھا۔ اس کے ساتھ موصل اس سے قبل وہاں پہ ایک لاہور پارکنگ کمپنی علی پارک کا پارکنگ سٹینڈ بھی تھا، لیکن تعمیراتی کام کے باعث وہ پارکنگ سٹینڈ 16 جنوری سے بند تھا۔ یہ حادثہ جہاں پر ہوا ہے یہ
गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड था और इसे मुतअद्दिद दफ़ा नोटिस दिए गए, लेकिन फिर भी ये यहाँ से ना हटा। उसके बाद दिसंबर के आखिर में और जनवरी के स्टार्ट में इस पर मुकदमात का इंदराज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद पार्किंग माफिया यहाँ से हटने पर यहाँ से नहीं हटा और ये बिलाखिर ये अफसोसनाक वाक़या इसकी वजह से हो गया। इस हवाले से एक और पहलू भी है और वो ये कि लाहौर पार्किंग कंपनी की 169 नंबर नोटिफाइड पार्किंग साइट के बारे में कहा जा रहा है कि ये वाक़या वहाँ पे हुआ, जबकि हक़ाइक़ के इसके बिल्कुल बरक्स हैं। दस्तावेज़ात जो 34-2 ने हासिल की, नक्शाजात हासिल किए, उसके मुताबिक जो 169 नंबर पार्किंग साइट है वो जाए हादसा से तकरीबन आधा किलोमीटर या 500 मीटर के से दूर वाक़या है, और जहाँ पे जो कि ना किसी किस्म की ट्रैफिक की खलल का बायस बना, तो ना ही वहाँ पे किसी किस्म का हादसा हुआ है, ना ही किसी भी महकमे की जानिब से उस साइट को नोटिस दिया गया है, जबकि वो साइट 2013 से वहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से जो लाहौर पार्किंग कंपनी के हुकाम का ये भी कहना है कि लाहौर पार्किंग कंपनी मजाज अथॉरिटी नहीं है किसी भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की, ना उसके पास कोई फोर्स है। इस किस्म की कार्रवाई MCL करती है, और इसके साथ सड़क पे जो किसी किस्म की अगर ट्रैफिक हो या वहाँ पे अगर कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई सिटी ट्रैफिक पुलिस की का मजाज है। इस हवाले से पार्किंग कंपनी का ये भी कहना है कि इस वाले जो बेबुनियाद और जो हक़ाइक़ के मुनाफी जो खबरें चलाई जा रही हैं और उसमें 169 नंबर पार्किंग का जो कहा जा रहा है। जीता है जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर में कितने सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए हैं, कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेशनल और कितने नॉन ऑपरेशनल हैं? मजमूई तौर पर 239 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए हैं। इनके हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। लाहौर शहर में साफ पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए। ये सिलसिला बुनियादी तौर पर शुरू हुआ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में और वो जो आज तक जारी है। मुख्तलिफ अदवार में कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, कितने फाल थे, इस हवाले से महकमा हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से बाकायदा पंजाब असम्बली में जो जवाब जमा करवाया गया उसमें बताया गया है कि लाहौर में मजमूई तौर पर 939 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे, जिनमें लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी शामिल है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शामिल है, साफ पानी अथॉरिटी शामिल है। लेकिन इसमें से हालिया जो सर्वे कराया गया तो उसमें 280 ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है जो कि नकारा निकले, गैर फाल निकले। ताम इस हवाले से हुकूमत ने चूंकि फैसला कर रखा है और इस फैसले की रोशनी में इन 280 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली पर बाकायदा काम जारी है और जल्द अज जल्द इनको मुकम्मल जो है वो फाल भी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि महकमा हाउसिंग की जानिब से जो तफसीलात पंजाब असम्बली में शेयर की गई हैं उसके मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने के ज़ेर इंतजाम 121 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, जिनमें से 80 प्लांट्स जो है वो गैर फाल निकले थे जिनकी बहाली पर काम जारी है, जबकि 41 जो बाकी मानदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी बहाली पर भी काम किया जा रहा है। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने लाहौर में ताल मुख्तलिफ अदवार में जो है वो 235 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स अब तक लगाए हैं और जिनको चेक भी किया गया और बताया जा रहा है कि ये तमाम चालू हालत में भी हैं। इसी तरह से दीगर की अगर बात की जाए तो वासा लाहौर के ज़ेरे इंतजाम 574 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि जिनके हवाले से ये बताया गया है कि तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चालू हालत में हैं। और इसी तरह से दीगर महकमों जिनमें लोकल गवर्नमेंट की स्कीम भी शामिल है और मुख्तलिफ महकमों की शामिल है, ताहम अब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो पंजाब साफ पानी कंपनी के हवाले किए जा रहे हैं जो जिनकी बहाली पर काम भी अब यही इदारा करेगा और इनकी आइंदा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जिम्मेदार भी यही इदारा होगा। लाहौर में चालू जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो स्काडा सिस्टम के तहत चल रहे हैं ताकि ऑटोमेशन के जरिए उनकी जो खराबी है वो भी सामने आए और वो फाल भी रहें। मैच के हवाले से अपडेट करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, बताएगा कब होगी ये मुलाकात? हाँ जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने के हवाले से इंतहाई अहम रोज़ है और आज शाम हमारे राय के मुताबिक तकरीबन 6 बजे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी
की चीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात शेड्यूल है। इस मुलाकात में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तरह जो हिकमत अमली है वो अपनी बना ली है और तमाम जो हिकमत अमली है इसके ऊपर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कि चेयरमैन PCB हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग देंगे। इसके साथ साथ वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान किया जा चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी इस हवाले से इसके ऊपर मनो अमल करेगी। इसमें पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो लाहौर पर मौजूद हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि यहाँ से आज कोई अहम फैसला होना है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने दो टोक ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है इसके ऊपर किसी किस्म का जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और तमाम तरह फैसले जो हैं वो पाकिस्तान का मफाद जो है उसको मद्देनजर रखते हुए बराबरी की बुनियाद पर किया जाएंगे। आज 6 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे चेयरमैन PCB और उसके बाद इस मुलाकात के बाद फैसला होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो किट अनवीलिंग की तकरीब मुलतवी की गई थी उस तकरीब के हवाले से भी अब तक यही इत्तलात हैं कि अगर पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में जाने का फैसला हुआ तो फिर इस किट की तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जाएगा। जी ठीक है, आप शहबाज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर हैं। पतंगों की खरीदारी के लिए मोची गेट पर शहरियों का रश बढ़ गया है। दुकानदारों की जानिब से पतंगों की मनपसंद रेट मुकर्रर किए गए हैं। 2 पीस डोर का पिन्ना 15,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। शरला पतंग 100, तवा गुड्डा 300, 1.5 तवा 450 रुपए में फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मजीद क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी सईद। आइंदा हफ्ते जो लाहौर के अंदर बसंत का मेला सजने जा रहा है उसकी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और लाहौरियों की तरफ से आज जो एक रश दिखा जा रहा है मार्केट के अंदर डोर और पतंगों की खरीदारी का, और जहां पर मर्द हज़रात मौजूद है वहीं पर खवातीन की तादाद है वो भी यहाँ पर सेल परचेज के लिए वहाँ से मौजूद हैं। कुछ खवातीन मौजूद भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी उनसे बात करेंगे। जी मैडम, पतंगों की खरीदारी के लिए आप आई हैं तो कैसा माहौल देख रही हैं, क्या दुश्वार का सामना करना पड़ रहा है खवातीन को? हाँ जी, बहुत ज्यादा मुश्किल हमें फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ मर्दों का बहुत ज्यादा रश है। अगर खवातीन लेने आ रही हैं तो उनके लिए स्पेस नहीं है। एक तो इस चीज का इंतजाम किया जाए कि अगर खवातीन आ रही हैं तो उनको जगह मिले, और दूसरा ये कि यहाँ बहुत महंगाई है। पिन्ना जो है वो 15,000 का मिल रहा है और जो गुड्डी है वो 300 से 500 तक की मिल रही है। तो थोड़ी सी कमी होनी चाहिए कि इतने अरसे बाद लोग ये बसंत का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इनके लिए थोड़ी सी महंगाई को कम करना चाहिए, हमारे लिए आसानी करनी चाहिए ताकि ये बच्चे सारे खुशी से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे खवातीन की तादाद जो है वो पोश इलाकों से अंदरून लाहौर का रुख है वो कर रही है ताकि पतंगे और डोर की खरीदारी है वो की जा सके और अपने साथ साथ जो नई जनरेशन है उनको भी इस पूरे फेस्टिवल का हिस्सा है वो बनाया जा सके। लेकिन जो कीमतों के ऊपर आकर और रश देखते हुए खवातीन ये मुतालबा करती दिखाई देती है कि खवातीन के लिए एक अलग से जो काउंटर या अलग से दुकानें हैं वो तरतीब दी जाए ताकि खवातीन जो है वो बाइज्जत तरीके से पतंगे और डोर है वो खरीद सके। कीमतों में बाजारों में बसंत कलेक्शन की धूम, नए डिजाइन मुतारिफ, पीले, सब्ज और शोक रंगों के कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगी अफशा रिजवान। जी अफशा, बताइएगा। जहां पे बसंत के हवाले से डोर और गुड्डे की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है, वहीं बाजारों में भी खासा रश देखा जा रहा है। खवातीन की बड़ी तादाद जो है कपड़े, जूते, ज्वेलरी लेती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ एक खवातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं, बसंत के हवाले से क्या तैयारी की जा रही है, कौन सा रंग है जिसके कपड़े, जूते लिए? पहले तो हमने कभी बसंत मनाई नहीं थी, अब बच्चों को कह रहे हैं कि मनानी है और इसी खुशी में आए हुए हैं। खुद से भी हमने येलो कलर के लिए हुए हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग हो रही है। येलो कलर का कोई खास ताल्लुक होता था कि बसंत पे येलो कलर ही पहना जाता था? हाँ जी, खास बसंत वाले दिन गुड्डियाँ जो होती थी ना वो गुड्डे वगैरह येलो ही उन्होंने बताया, येलो ही उड़ते थे, तो इसलिए हम ये चीज़ें पहन रहे हैं खुशी से। बिल्कुल, उनका कहना है कि खुशी से अपने ये सारी चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि ये एक फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे होने जा रहा है लाहौर में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम भी बहुत ज़्यादा अरूज पर हमारा जोश है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए कपड़े, जूते, ज्वेलरी भी खरीदे हैं और मार्केट में नए डिज़ाइंस भी यहाँ पे मौजूद है, ज्वेलरी के हवाले से, चूड़ियों के हवाले से, और स्पेशली नीले पीले रंग के जो सूट है वो खासा तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं खवातीन की, क्योंकि वो कह रही हैं कि बसंत है, बहार का फेस्टिवल है, तो इसको बहार के रंगों से ही जो है मनाया जाएगा। ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया।
मॉडल टाउन जवेन में सेफ्टी रॉड हिफाजती अहकामात आगाही मुहिम जारी। हादसात की रोकथाम के लिए जवेन में सेफ्टी रॉड्स लगाए जा रहे हैं। जवेनल SHOs ने मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड्स लगाए। तर्जुमान का कहना है कि मॉडल टाउन डिवीजन की जानिब से आवाम की आगाही के लिए कैंप लगाए गए हैं। गैर कानूनी पतंगबाजी, पतंगसाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। तो आपको बताएं कि मॉडल टाउन डिवीजन में सेफ्टी रॉड हिफाजती अहकामात आगाही मुहिम जारी है। हादसात की रोकथाम के लिए डिवीजन में सेफ्टी रॉड्स लगाए जा रहे हैं। कि रमज़ान मुबारक से कबल मॉडल और सहूलत बाज़ारों को मुकम्मल फंक्शनल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रमज़ान बाज़ारों के लिए वाज़ेह हदफ मुकर्रर कर लिया है। तमाम सहूलत बाज़ारों की तैयारी 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का हदफ तय किया गया है। रमज़ान मुबारक में शहरी सस्ती और मयारी अशिया बआसानी हासिल कर सकेंगे। शहरी रमज़ान बाज़ारों से अशिया खुरनोश सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खरीद सकेंगे। रमज़ान बाज़ारों में 10 किलो आटे का थैला 850 रुपये में दस्तयाब होगा। चिकन रमज़ान बाज़ारों में मार्केट से 15 रुपये फी किलो सस्ता फराहम किया जाएगा। अंडे रमज़ान बाज़ारों में 10 रुपये फी दर्जन कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। आपको बताएं रमज़ान मुबारक से कबल मॉडल और सहूलत बाज़ारों को मुकम्मल फंक्शनल बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रमज़ान बाज़ारों के लिए वाज़ेह हदफ मुकर्रर कर लिया है। तमाम सहूलत बाज़ारों की तैयारी 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का हदफ तय किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, बताइएगा तैयारियों के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक से कबल मॉडल बाज़ार और इसके अलावा सहूलत बाज़ार को मुकम्मल फंक्शनल बनाने की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। जबकि इन रमज़ान बाज़ारों के लिए जो हदफ है वो मुख्तलिफ मुकर्रर किए गए हैं। जबकि इस हवाले से ये तय किया गया है कि तमाम सहूलत बाज़ारों की जो तैयारी है वो 15 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। जबकि इसके अलावा रमज़ान मुबारक में शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया बआसानी हासिल कर सकेंगे। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं वो खुर्दोनोश अशिया के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें वहाँ से ले सकेंगे। जबकि जो रमज़ान बाजार है वो 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो खुले रहेंगे। जबकि इसके अलावा रमज़ान जो बाजार है उसमें 10 किलो का आटे का थैला 850 रुपये में दस्तयाब होगा। जबकि इसके अलावा चिकन जो है वो रमज़ान बाजार में मार्केट से 15 रुपये से 1 किलो सस्ता होगा। जबकि इसके साथ साथ जो अंडे हैं वो भी 10 रुपये से दर्जन कम होंगे। जबकि इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में आटे की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए फ्लोर मिल्स की खुसूसी उनको हदायत जारी की गई। जबकि इसके अलावा ये भी उनको कहा गया है कि जो उनके जिला के अंदर 3 सेल पॉइंट हैं वो भी कायम किए जाएंगे। जबकि आटे की किल्लत जो है इससे बचने के लिए सेल पॉइंट पर बराह रास्त सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ 105 के करीब जो बड़े स्टोर हैं वहां पर भी शहरियों को अशिया खुर्दनोश होलसेल रेट पर फराहम की जाएंगी। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जिला इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। ओपन मार्केट में दूध 190 रुपये से 220 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से बात करेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। जी, दूध और दही हर घर की एक बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी रेट्स पर दूध और जो दही की फ़रोख्त को मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करवाने में ज़िला इंतज़ामिया नाकाम दिखाई दे रही है। लाहौर शहर की तमाम जो ओपन मार्केट के अंदर जो दूध का रेट है, जिस रेट पर दूध फ़रोख्त किया जा रहा है, ये 190 रुपये से लेके 210 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर दूध को फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो सरकारी रेट है ये 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़िक्स किया गया है दूध का रेट। इसी तरह अगर बात की जाए दही की, तो दही भी हर एरिया के मुताबिक और हर दुकानदार का अपना रेट है। 240 रुपये से लेके 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दही का रेट लाहौर की ओपन मार्केट में देखा गया है। जो तमाम शहरी हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि ख़ास तौर पे ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ये पूरे लाहौर की जो ओपन मार्केट है यहाँ पे रैंडम सर्वे किया जाए और इस रेट को चेक किया जाए और ख़ास तौर पे आम शहरियों के लिए जो सरकारी रेट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि हर घर की और हर बच्चे की जो एक बुनियादी ज़रूरत समझा जाता है दूध, ये सरकारी रेट पर ही दस्तयाब होना चाहिए। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
लेस्को समेत तमाम कंपनियों में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। 2 माह के दौरान खराब होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स तब्दील करके उस एक्सपोर्ट यूनिट्स पर रिलीफ दिया जा सकेगा। नेपरा ने जलने और खराब होने वाले ग्रीन मीटर्स तब्दील करने की पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सार्फिन के मीटर्स तब्दील करने और एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स पर रिलीफ देने की पॉलिसी बनाई गई है। इसी तरह खराब और जलने वाले ग्रीन मीटर्स पर 2 माह तक औसत एक्सपोर्ट यूनिट्स चार्ज करने की हिदायत जारी की गई है। नेपरा ने गुज़श्ता साल की बुनियाद पर 2 माह तक एक्सपोर्ट यूनिट्स पर रिलीफ देने की भी मंजूरी दी है, जबकि तमाम कंपनीज 2 माह के दौरान बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स तब्दील करने की पाबंद होंगी, जिसके बाद खराब और जलने वाले मीटर्स को उतार कर लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की रोशनी में एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को मजीद एडजस्ट किया जाएगा। नेशनल टाउन प्रेस क्लब के नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी एफ्रिएशन इंस्टीट्यूट नेशनल कॉलोनी में मुनक़िदा तकरीब में काबीना ने हलफ लिया। इस तकरीब का अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। मौजूद हूँ जहाँ पे हलफ बर्दारी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे चेयरमैन फयाज अहमद राना मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि हलफ बर्दारी की आज जो तकरीब थी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, नेशनल टाउन प्रेस क्लब की हमने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन का टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। तमाम सहाफ़ियों ने वोटिंग की और उसके बाद जो बॉडी तश्कील दी, आज उनकी हलफ बर्दारी है और ये बड़ा अच्छा इकदाम है सहाफ़ियों के लिए। हम यहाँ पे नेशनल टाउन प्रेस क्लब का मकसद ये है कि यहाँ पे हम सहाफ़ियों की खिदमत करें और जो प्रेस के सारे मामला हैं उसको ऐसे अंदाज से सारे मामला करें। जी, सीसी मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, हलफ बर्दारी का आज तकरीब मुनक्किद की गई है। यहाँ पे बड़े मुनसफाना इलेक्शन हुए और उसके बाद जो बॉडी तश्कील दी है, अब मैं समझता हूँ कि आज जितनी सहाफ़ियों के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त बेशुमार चैलेंजेस है जो कि दरपेश है सहाफ़ी बरादरी को। तो इस तरह ये नई बॉडी जो है ये तश्कील दी, इस पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम दोस्तों को साथ लेके चलें ताकि फ्यूचर में हम जो सहाफ़ी बरादरी है उसी फलाह के लिए भी काम कर सके और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी अदा कर सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। इनका कहना है कि आज की तकरीब का बुनियादी मकसद यही है कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद। फरीहा, बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज तफरीह के लिए लाहौरियों ने जलो पार्क का रुख कर लिया है। शहरी बच्चों और फैमिलीज के हमरा जलो पार्क में मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ हैं। समरा, बताइए। जी, आज छुट्टी का रोज़ है और छुट्टी के रोज़ तफरीह के लिए शहरियों ने लाहौर जलो पार्क का रुख कर लिया है। इस वक्त भी जलो पार्क में फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है जो ना सिर्फ पिकनिक मना रही है बल्कि यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बच्चे अपने पसंदीदा झूले ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ ख्वाबों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? यस। कौन से झूले लिए आपने? ट्रेन और जंपिंग। ट्रेन और जंपिंग लिया। आप मुझे बताओ, आज छुट्टी का दिन है, किसके साथ आए हो? मामू के साथ, फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आए हो, मजा आ रहा है। कौन से झूले लिए? ट्रेन और एक ये वाली गाड़ी लेनी। ट्रेन और गाड़ी आपने ली है। और कौन से झूले लेने? और ये वाले गाड़ी इसके साथ आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो झूले लिए हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो घुड़सवारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज का भी यही कहना है कि आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए उन्होंने जो है वो तफरीह के लिए जलो पार्क का रुख किया है और यहाँ पर मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होकर वो अपने दिन को यादगार बना रहे हैं। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।